Exam dost, success ka host. Sainik na vodaya mein topmost. Moving ahead on that, now many Indians contributed to the framing of constitutions. It was definitely a result of a work of many leaders who came together from different areas of knowledge. But the most important role was played by Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Drafting committee means the committee which was drafting the constitution. This question has been asked many times, so there are less chances. However, in match the following or matching the column kind of question, they may ask. And under the supervision of Dr. Bhimrao Ambedkar, the document was finalized. After the finalization of the constitution, in the final speech to the Constituent Assembly, a very important one, he understood the role of every citizen in the participation in the development of the nation. So that is why his constitution was inclusive of everyone. But he pointed out a special point. He pointed out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy also. Giving the right to vote would not only automatically lead to the removal of other inequalities, such as between rich and poor or between upper and lower caste. With the new constitution, now try to understand where is he trying to get. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना यहाँ पर यह है कि हमने राइट टू वोट तो सबको दे दिया, हमने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स तो सबको दे दिए, पर क्या इससे इक्वालिटी मिलेगी? And when he is talking about equality, he is not only talking about political equality, but he is also talking about economic and social equality. कि सिर्फ वोट दे देने के अधिकार से उन्हें क्या मिलेगा? और उनका यह मानना था कि वोट देने के अधिकार के साथ साथ जैसे आपने यहां पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी है, वोट देने का अधिकार दिया, उनको अदर राइट्स भी हमें देने पड़ेंगे, उनको अदर फ्रीडम्स, उनको अलग एरियाज में भी उनका अपलिफ्टमेंट जरूरी है, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार तो मिल रहा है, पर उसके बावजूद भी उनके बीच में एक डिवीजन रह जाएगा, गरीब और अमीर के बीच में, अपर और लोअर कास्ट के बीच में. He said that we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. आपने पॉलिटिकल लाइफ में तो उनको इक्वालिटी दे दी है, पर सोशल पॉलिटिकल लाइफ में आपने उनको इक्वालिटी नहीं दी है, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, बट इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. So what is he trying to point out is कि आपने उनको वोटिंग के राइट्स देकर उन्हें इक्वल तो बना दिया, पर उनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का क्या, उनके सोशल स्टेटस का क्या है? अभी भी उन्हें कोई इक्वल मानने को तैयार नहीं है. इकोनॉमिकली वो अभी भी पीछे हैं. तो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकली आपने उनको ये राइट देने से सिर्फ काम नहीं होगा. दैट वाज हिज पॉइंट.
In this picture, you can see Dr. Bhimrao Ambedkar sitting here. Period 1891 to 1956, respectfully referred as Baba Saheb. He belonged to a Marathi Meher caste, a Marathi speaking Dalit family, a lawyer and economist. He is best known as a revered means respected leader of the Dalits and the father of Indian Constitution. A very common question. Father of Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. So on one hand, Dr. Bhimrao Ambedkar was talking about the unity and development. He was talking about mass upliftment of poverty. एक तरफ वो बॉटम पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लोगों की डेवलपमेंट के, उनकी यूनिटी के, उनके सोशल इक्वालिटी, उनके इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक नया इशू इनके सामने बनने लग रहा है. Back in the 1920s, see how it is shaping. The Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, we know that, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. तो in 1920 में, जब 1920 is the period जब हमारे सारे लीडर्स देश के अलग अलग कोने में जाकर अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, लोगों को एक कर रहे थे, और उस समय इन्होंने एक प्रॉमिस दिया कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो जितने भी लिंग्विस्टिक हैं, मतलब जो अलग अलग भाषाओं बोलने वाले, जो अलग अलग बोलियां बोलने वाले, भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, उन सभी को अपना एक एक प्रोविंस दिया जाएगा. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. पर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कांग्रेस ने इस पर काम नहीं किया, इस पर कोई भी स्टेप नहीं लिया. एंड देयर वाज अ रीजन फॉर दैट. क्या रीजन था? लेट अस हैव अ अंडरस्टैंडिंग दिस ऑन दिस. फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू टू. क्या बात कर रहे हैं? ये बात वही कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट हाउ मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड डिमांडिंग अ पाकिस्तान. गांधी जी के कई कोशिशों के बाद भी वो इस चीज को रोक नहीं पाए. तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि फ्रीडम एक नहीं, दो कंट्रीज को मिली. Now, till now, there is no problem that the freedom is achieved by two countries. Completely okay. But what was the aftermath of this? As a result of partition of India, more than 1 million people had been killed in riots between Hindus and Muslims. This was the painful part, which none of the leaders were willing to डू इट अगेन. अब क्योंकि पार्टीशन के समय पर जो केओस हुआ, जो राइट्स हुए, जो एट्रोसिटीज हुई, कोई भी लीडर अब उसे ऐसा कोई डिसीजन ले जिससे ऐसी सिचुएशन दोबारा खड़े हो, कोई भी नहीं चाहता था. कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? क्योंकि पहला तो डिवीजन रिलीजन के बेसिस पर हो गया था. क्या हम दूसरा डिवीजन देखना चाह रहे हैं? अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द लीडर्स बैक देन. दे वर ऑल अननर्व्ड बाय व्हाट जस्ट हैपेंड ड्यू टू पार्टीशन. देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वॉज शेकन. वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिसीजन होता उस समय कि और हम फर्दर डिवाइड करें लैंग्वेज के बेसिस पर. और वो ये भी सोच रहे थे कि अगर हमने एक बार शुरू किया तो कई सारे डिविजन्स और हो जाएंगे, उससे और फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट वो फोर्स ही नहीं कर पा रहे थे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं. और एट दैट टाइम जब हमारा देश ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम्स से
स्ट्रगल कर रहा था, एक और नई प्रॉब्लम आना, दैट इज वाई कांग्रेस वॉज नॉट विलिंग टू टेक एनी फर्दर स्टेप कि हाँ भाई हम भाषा के बेसिस पर अलग अलग राज्यों को हम बांटेंगे, अलग अलग प्रोविंस हम बनाएंगे. बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के बेसिस पर अलग अलग स्टेट बनाने के खिलाफ थे. After the partition, Nehru said disruptionist tendencies had come to the fore. Come to the fore मतलब किसी छुपी हुई चीज का सामने आ जाना. डिसरप्शन मतलब किसी भी चीज़ में बहुत ही नेगेटिव चेंज आ जाना. तो कह रहे हैं कि ऐसी जो टेंडेंसी है सामने आ गई हैं पार्टीशन की. हर कोई पार्टीशन करने की बात कर रहा है, क्योंकि सबने देखा कि भाई जब रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हो सकता है तो लैंग्वेज के बेसिस पर हमारा भी अलग एक, कई और भी थे छोटे छोटे ग्रुप्स जो कंट्री डिमांड करने की बात कर रहे थे. तो दोनों ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाषा के बेसिस पर और डिवीजन हम नहीं करेंगे, स्टेट हम नहीं बनाएंगे. एंड टू चेक देम द नेशन हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड. और इसको रोकने के लिए हमें एक एज अ कंट्री स्ट्रांग रहना है, यूनाइटेड रहना है. और एज पटेल पुट इट, द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन. कह रहे हैं कि पहली और आखिरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक देश बनना है. Everything which helps the growth of nationalism has to go forward and everything which throws obstacle in its way has to be rejected. तो वो जो भी चीज़ जो हमें राष्ट्रीयता को बढ़ावा देती है, हमारी देशभक्ति को बढ़ावा देती है, उस चीज़ को आगे लानी है. और ऐसी चीज़ जो उसके रास्ते में आ रही है, जो हमारी यूनिटी को रोक रही है, उसे हमें रिजेक्ट करना. वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस ऑल्सो एंड बाय दिस टेस्ट इन आवर ओपिनियन दे कैन नॉट बी सपोर्टेड. उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ लिंग्विस्टिक एरियाज में इसे ट्राई करके देखा है और वहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो इसे हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए. दैट वॉज देयर वर्ड्स, दैट वॉज देयर ओपिनियन, जो कि उस समय के हिसाब से सही भी है. देश कई सारी दिक्कतों से, आर्थिक दिक्कतें हैं, सामाजिक दिक्कतें, इकोनॉमिक पॉलिटिक प्रॉब्लम्स हैं. The country is poor right now. Sources of income is only agriculture. Almost 70% of the country is illiterate. So at this time we cannot actually take any steps which is related to division. Rather we should focus on unity, and with combined unity we should progress towards prosperity. That was their goal at this moment, which was correct. Now again, on one hand, both the Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel were dealing with all the different problems, and on the another hand, they had to go back on their promise. The Congress leaders would now go back on their promise. This created a great disappointment. Now, if you were promised to get your own province after the independence, and if that promise is not fulfilled, it will definitely a reason of great disappointment. तो जितने भी अलग अलग प्रोविंसेस के लोग थे उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिल्कुल हुई. द कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स हैड ऑल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट. सभी अपना अपना स्टेट देख रहे थे, पर उन सबको निराशा हाथ लगी, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, क्योंकि उनका स्टेट नहीं बन पाया. द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हाउएवर केम फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ what was the Madras presidency. What was the strongest? Let's see. When Nehru went to campaign there during the general elections in 1952, he was met with black flags and slogans demanding "We want Andhra." See, this was the strongest. Even though in every pocket of the country there was a disappointment, there was a disagreement. People were looking forward to have their state. But in the Andhra region, which was at that time under Madras presidency,
In 1952 they show black flags and gave a slogan, we want Andhra, hame Andhra. In October of that year, a veteran Gandhian named Potti Sriramulu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. So a prominent name, Potti Sriramulu, ये भूख हड़ताल पर चले गए कि हमें आंध्रा स्टेट बनाकर चाहिए तेलुगु लोगों के लिए. एंड एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट. हड़ताल्स एंड बंद वर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मेनी टाउन्स. और ये इनका जो प्रोटेस्ट था, जो स्ट्राइक था, ये बहुत फैला. नाउ came a bolt from the blue, which was, this is a picture of Potti Sriramulu, the Gandhian leader who died fasting for a separate state for Telugu speakers. This is his picture. Now we were talking about a bolt from the blue. On December 15, 1952, 58 days into this fast, Potti Sriramulu died after 58 days. And because of this, there was an uproar. As a newspaper put it, the news of the passing away of Sriramulu engulfed entire Andhra in chaos. It was a complete uproar. The protests were so widespread and intense that the central government was forced to give in to the demand. Such a strong protest, such a strong strike, such a widely spread protest it was. Thus, on 1st October 1953, the new state of Andhra came into being, which subsequently became Andhra Pradesh. इस पर क्वेश्चन पहले पूछा गया है that when Andhra Pradesh state was made. Now, why it is important? क्योंकि ये पहला स्टेट था बनने वाला, इसीलिए इस पर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी चांसेस हैं इसके. After the creation of Andhra, the other linguistic communities also demanded their own separate states. So this event in which Potti Sriramulu died, it paved the way for the formation of Andhra Pradesh and subsequently other states also. पोती श्रीरामुलु की डेथ से जो स्ट्राइक फैली, जो उसकी स्ट्रेंथ हुई, उसकी वजह से गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन की बात माननी पड़ी. और आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन के साथ साथ जो अदर स्टेट्स की डिमांड थी वो भी स्ट्रांग हो गई. हर कोई अपना एक अलग स्टेट मांगने लगा. अ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप बनाया गया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956. उन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट भी दी, रिकमेंडिंग द रीड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ. देखिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दिए, क्या क्या प्रोविंसेस दे रहे हैं. असमीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकर्स. तो ये उन्होंने प्रोविंसेस बताए हैं कि ये हमें नई बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने पड़ेंगे और लैंग्वेज के बेसिस पर ये सेपरेशन हम करेंगे. The large Hindi speaking region of North India was also to be broken up into several states. North India भी कई parts में break होगा. A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. तो बॉम्बे का भी मराठी और गुजराती में डिवीजन हो गया. 1960. 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. The former for the Punjabi speakers, who were also mostly Sikh,
and the later for the rest who spoke not Punjabi but versions of Haryanvi और हिंदी. तो पंजाब भी जो अब पंजाब है वो उस समय पंजाब हरियाणा मिक्स था, उसको भी डिवाइड कर दिया. पंजाब को सिख लोगों के लिए रखा और हरियाणा को अदर देन पंजाबी बोलने वालों के लिए जो हरियाणवी या हिंदी बोलेंगे. ये इतने डिविजन्स हुए. Now here in this picture you can see our country India. Some part of it is yellow in color, that is the British Indian part, and some part which is pinkish in color, there is a princely states. This is the picture of Indian provinces and princely states before 14th August 1947. Now here in this picture you can see other states and erstwhile princely states. Now what is the meaning of erstwhile? This is a picture of Indian states before November 1st November 1956. As we discussed that Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, they both started uniting the country. तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको वो क्या कर रहे थे, एक सिंगल नेशन में उनका विलय कर रहे थे, उनको एक नेशन में मिला रहे थे. तो कई सारे ये जो स्टेट्स हैं वो सारे के सारे भारत में आकर मिल गए. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट हैं, वो ये है, ऐसे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका हम ले रहे थे. वहां के राजा ही थे, पर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल धीरे धीरे हम ले रहे थे, इसलिए उन्हें अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट कहा गया. And finally you see this picture, and here in this picture you can see that all the states, now we are moving towards the new nation, lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of the new nation. तो जब हमारा new nation बना, सबसे पहला गोल था भाई गरीबी हटाना है, नई टेक्नोलॉजीज लानी है, इंडस्ट्रियल बेस बनाना है. ये हमारे देश का पहला गोल है. In 1950 the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. कि हमारे देश में कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, क्या क्या उसके मेजर स्टेप्स होंगे, इसको डिसाइड करने के लिए प्लानिंग कमीशन, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, ये बनाया गया. रिमेंबर, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं. 2014 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है और इसका फॉर्मेशन 1950 में हुआ था. अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है पर पूछा जा सकता है. देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी. Here both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. इकोनॉमी को हमने मिक्स्ड इकोनॉमी कहा कि प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर हमारा देश और या जो हमारी गवर्नमेंट है मिलकर काम करेगी. इससे हम प्रोडक्शन भी करेंगे, जॉब क्रिएशन करेंगे. What specifically these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between these different regions was to be defined by the planning commission. तो किसका कितना रोल होगा ये प्लानिंग कमीशन का काम होगा डिसाइड करना. कौन से मार्केट्स में हमें एंटर करना है, बैलेंस कैसे लाना है, कौन कौन सी नई इंडस्ट्रीज हमें शुरू करनी है. दैट वाज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, the leaders thought that most of the responsibilities will be taken over by the planning commission and most of the things can be rested on the shoulders of planning commission, which was to a very greater extent correct also. क्योंकि प्लानिंग कमीशंस ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल को उठा लिया था. और प्लानिंग कमीशन अब 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा था. इन 1956 द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड.
पंचवर्षीय योजना इसे कहा जाता था. दिस फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील इंडस्ट्री एंड ऑन बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम. तो जब सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया 1950 में इनका गठन हुआ, 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला, 56 से सेकेंड 5 ईयर प्लान चला. और सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या गोल था. तो सेकेंड 5 ईयर में प्लान था कि हम हैवी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, बड़े बड़े हम डैम्स बनाएंगे. दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे. दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री and the effort at state regulation of the economy was to guide the economic policy for the next few decades. And this approach had many strong supporters. तो कई लोगों ने इस चीज को सपोर्ट भी किया कि भाई हमें हैवी इंडस्ट्री को इंडस्ट्रीज काम में सेटअप करना चाहिए. कई सारे इसके सपोर्टर्स भी थे, लेकिन कुछ इसके अगेंस्ट में भी थे. Here you can see a picture of the dam. Here you can see the picture of महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ हीराकुंड डैम. दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया. इंडिया का ये सबसे लंबा डैम है. हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर बना हुआ, उड़ीसा में बना हुआ. The bridge on the Mahanadi River, constructed to control the flow of water, bridges and dams, became the symbol of development in independent India. Hirakund Dam. Another image where you can see the work going on at the Gandhi Sagar Bandh. Gandhi Sagar Bandh was the first of the 4 dams built on the Chambal River in Madhya Pradesh. Was completed in 1960. गांधी सागर डैम पर काम चल रहा है. Now Nehru on the 5-year plans. What was his views? Prime Minister Jawaharlal Nehru was a great supporter of the planning process. He explained the ideals and purposes of planning in a series of letters he wrote to the chief ministers of different states. Planning को support करते थे, ये चाहते थे हर चीज प्लानिंग से हो. कई मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी ना. लेटर ऑफ 22 दिसंबर 1952 क्या लिखा हुआ है देखिएगा. बिहाइंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाइज द कंसेप्शन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड ऑफ अ माइटी कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. कह रहे हैं कि पहला जो 5 ईयर प्लान बनाया, इंडिया की यूनिटी को देखते हुए, कोऑपरेटिव एफर्ट को देखकर लोगों को स्ट्रांग बनाने की बात है. वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट इट इज नॉट मियरली द गवर्नमेंट्स मशीनरी दैट काउंट्स इन ऑल दिस, बट इवन मोर सो द एंथुजियाज्म एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल. कह रहा है गवर्नमेंट अकेले इसमें कुछ नहीं कर पाएगी. ये लोगों के उत्साह, लोगों के प्रोत्साहन से भी इसमें बहुत सारी चीजें होंगी. आवर पीपल मस्ट हैव द सेंसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन अ माइटी एंटरप्राइज, ऑफ बीइंग फेलो ट्रैवलर्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट गोल दैट they and we have set before us. तो सभी लोगों को एक साथ मिलकर चलने की बात है. The plan may be and has to be based on the calculation of economists, statisticians and the like, but figures and statistics, very important as they are, do not give life to the scheme. तो ये बात करें कि जो भी हमें आगे बढ़ना है, इकोनॉमिस्ट के प्लान से, स्टैटिस्टिशियंस के प्लान से, नंबर के बेसिस से आगे चलना है. That breath of life comes in other ways, and it is for us now to make this plan, which is enshrined in cold print, something living, vital and dynamic, which captures the imagination of people. तो basically planning के process की importance की बात कर रहे हैं. 1952 was a situation, we were still in a shaky situation. बहुत ज़्यादा stable हम as a country नहीं हो पाए थे. Education का level बहुत अच्छा नहीं था. Mostly country agriculture पे चल रही थी. But at that time he envisioned that planning will be the key effort to change everything 360 degree. तो planning पर इन्होंने importance दिया है. Here in this picture you can see Jawaharlal Nehru, and the place where he is standing is the Bhilai steel plant. Bhilai steel plant is located in Chhattisgarh. Bhilai steel plant was set up with the help of former Soviet Union in 1959. Question पूछा जा सकता है. ये भिलाई स्टील प्लांट का फॉर्मेशन कब हुआ था? सोवियत यूनियन की हेल्प से 1959 में भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, उसका फॉर्मेशन हुआ था. लोकेटेड इन द बैकवर्ड रूरल एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़. इट केम टू बी सीन एज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस.
इंडिपेंडेंस के बाद स्टील का वहाँ प्रोडक्शन हुआ और इंडिया के मॉडर्नाइजेशन के साथ इसे लिंक किया गया. Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture. Others argued that it had neglected primary education. बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की चल रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में ये बात चल रही है कि हमने जो स्टील इंडस्ट्री, हमने जो हैवी इंडस्ट्रीज, हम ये जो डैम्स बनाने का ये सब जो काम कर रहे हैं, इससे हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. ये कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. इवन दो देवर मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो इस तरह के डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे थे. भाई भिलाई स्टील प्लांट खुल रहा है, नए नए डैम्स बन रहे हैं. नए डैम्स बनने का मतलब एग्रीकल्चर, हमारी फार्मिंग बेटर हो सकती है, हमारी इरिगेशन में हेल्प होगी. पर कुछ ऐसे भी लोग थे वो ये कह रहे थे कि आप हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान है. सो देयर वर क्रिटिक्स एंड दे विल ऑलवेज बी देयर. So still others believe that it has to be taken account of the environmental implications of economic policies. और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो आप हैवी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, जो कि बात सही भी है, कि अगर आप एक स्टील प्लांट लगाते हैं तो सारे जो हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो एसिड रेन कराने वाली जो गैसेज हैं, ये सारी गैसेज स्टील के प्रोडक्शन से रिलीज होती हैं. So that is what people are talking about, that what is the environmental application of these economic policies. So there were people talking about the implications of environmental effect on the economic policies, कि भाई ये सब डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ेगा. वो तो डेफिनेटली पड़ेगा ही, बट वी हैव टू कीप अ बैलेंस. एज महात्मा गांधीज फॉलोअर मीरा बहन wrote in 1949, by science and machinery ही का मतलब यहाँ मैनकाइंड को रेफर करा है, मे गेट ह्यूज रिटर्न्स फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डेजोलेशन. कह रहा है कि ये साइंस और मशीनरी से हमें थोड़ा फायदा तो होगा, पर इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. We have got to study nature's balance and develop our lives within her laws if we are to survive as a physically healthy or morally decent species. तो ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन हम उसे ब्लाइंडली उसको फॉलो अगर करते रहे तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्पैक्ट हो जाएगी इससे. इंडिया गेन्ड फ्रीडम सून आफ्टर द डिवास्टेशंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, and at that time a new international body, the United Nations, formed in 1945 was in its infancy. ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की हमारी जो फ्रीडम मिली वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, उस 1947 में हमें फ्रीडम मिला, और 1945 में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि अपने इन्फेंसी मतलब इनिशियल स्टेजेस में था. द 1950s and 1960s saws the emergence of Cold War, that is the power rivalries and ideological conflict between the USA and the USSR. तो 1950 और 1960 का पीरियड वो पीरियड रहा जो कोल्ड वॉर का पीरियड रहा, जहां यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर, इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा. दोनों की आइडियोलॉजीज अलग अलग रही. बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री अलायंसेस, दोनों ही कंट्रीज अपने अपने मिलिट्री अलायंसेस करने लगी. दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन कॉलोनियल एम्पायर्स वर कोलैप्सिंग एंड मेनी कंट्रीज वर अटेनिंग इंडिपेंडेंस. ये वो पीरियड था जब बहुत सारे जो देश थे, जो कॉलोनीज बन चुके थे, जो किसी के कंट्रोल में आ चुके थे, अब वो फ्रीडम ले रहे थे, उनको इंडिपेंडेंस मिल रही थी. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हु ऑल्सो was the foreign minister of newly independent India, developed free India's foreign policy. In the context, non-alignment formed the bedrock of this foreign policy. अब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर भी से थे साथ साथ में, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और फॉरेन मिनिस्टर होने के साथ ही उनकी जो पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, कि हम किसी का भी हम साथ नहीं देंगे, इस तरह की कोई भी मिलिट्री अलायंसेस में हम नहीं जाएंगे, ये उनका ऐसा मानना था. Led by the statesmanship from Egypt, Yugoslavia, Indonesia, Ghana and India, the non-aligned movement urged countries not to join either of the two major alliances. तो ये सारे देश, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इंडिया,
ये सब ना तो यूएसए के साथ जाना चाहते थे, ना ही यूएसएसआर के साथ जाना चाहते थे। वो किसी भी तरह का मिलिट्री अलायंस नहीं, वो न्यूट्रल रहना चाहते थे। But this policy of staying away from alliances was not a matter of remaining isolated or neutral. The former means remaining aloof from world affairs, whereas non-aligned countries such as India played an active role in mediating between the American and Soviet alliances. तो इंडिया जो कर रही थी, क्या कर रही थी, अमेरिका और सोवियत अलायंसेस के बीच में एक मीडिएशन का काम कर रही थी. They tried to prevent war, often taking a humanitarian and moral stand against war. भारत जो है कभी भी हमेशा वॉर के अगेंस्ट रहा. However, for one reason or another, many non-aligned countries, including India, got involved in wars. तो हम हमेशा हम लड़ाई से दूर रहना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से हमारे साथ वॉर होती रही. By the 1970s, a large number of countries had joined the non-aligned मूवमेंट. और 1970 आते आते तक सभी लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वॉर से कोई फ़ायदा नहीं है और हमें नॉन अलाइंड रहना चाहिए, हमें किसी भी मिलिट्री अलायंसेस के साथ जुड़ना नहीं चाहिए. Here in this picture you can see Jawaharlal Nehru and Krishna Menon arriving at the United Nations. Krishna Menon led the Indian delegation to the UN between 1952 and 1962 and argued for a policy of non-alignment. नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के बारे में आर्ग्यूमेंट रखने वाले ये कृष्णा मेनन थे. Here in this picture you can see the leaders of Asian and African countries, including Jawaharlal Nehru. They had a meeting at Bandung, इंडोनेशिया in 1955 में इनकी ये मीटिंग हुई. ओवर 29 न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे पार्टिसिपेटेड इन दिस फेमस कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस हाउ द अफ्रीकन एशियन नेशंस कुड कंटिन्यू टू अपोज कोलोनियलिज्म एंड वेस्टर्न डोमिनेशन. तो ये मीटिंग इस बारे में चल रही है कि कैसे अब ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एक बार जो हमें कॉलोनी बना लिया गया था, अब दोबारा हम कैसे इसको अपोज करेंगे, आपस में कैसे हम यूनाइट करेंगे, आपस में हम कैसे स्ट्रेंथ अपनी रखेंगे. फर्दर इट सेज द 15th August 2007, India celebrated 60 years of its existence as a free nation. How well has the country done in this time? और अब तो 79 years हो चुके हैं. And to what extent has it fulfilled the ideals set out in its constitution? तो ये यहीं पर बात करें कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को जो सोचकर हमने 3 साल में बनाया उसे किस तरह से हमने अब तक फॉलो किया है, क्या क्या चीज़ें हमने उसकी ली हैं और अभी भी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी बाकी हैं. Talking about that India is still united and that it is still democratic are achievements that we might justly be proud of. कि अभी तक हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, अभी तक हमारा देश है वो पूरा एक है, वो टूटा नहीं है. Many foreign observers had felt that India could not survive as a single country. कई फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने कहा कि भारत एक यूनाइटेड नेशन बन के रह ही नहीं पाएगा, that it would break up into many parts with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. Others believed that it would come under military rule. तो कई लोगों को लगा कि भारत एक रहेगा ही नहीं, it will not stand as a nation. While many people feel that it will come under कि वहाँ पर मिलिट्री का रूल हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हो गया. However, as many as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of states and local elections. लेकिन आप देख सकते हैं कि आज तक 13 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं और कई सारे स्टेट और लोकल म्यूनसिपल इलेक्शंस हो चुके हैं. देयर इज़ अ फ्री प्रेस एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारे पास फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. फाइनली द फैक्ट दैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज और प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी. हम देख सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज होना, अलग अलग रिलीजन होना, ये हमारे देश की एकता के बीच में नहीं आया. हमारा देश अभी भी एक है. On the other hand, deep divisions persist. अभी भी डिवाइड है सोसाइटी में. Despite constitutional guarantees, the untouchables or as they are now referred to the Dalits, they face violence and discrimination. तो एक जहाँ एक तरफ ये चीज़ है कि हमारा देश एक है, दूसरी तरफ डिवीजन अभी भी है. दलित लोग हैं, अभी भी उनको डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, उनके साथ वायलेंस होता है. In many parts of rural India, they are not allowed access to water sources, temples, parks and other public places. अभी भी रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में अगर आप जाएं तो अभी भी कई ऐसे प्लेसेस हैं
जहाँ पर उन्हें टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता, कॉमन वाटर सोर्सेज को यूज़ करने नहीं दिया जाता, पार्क्स में नहीं जाने देते, पब्लिक प्लेसेस में बैठने नहीं देते. एंड डिस्पाइट द सेक्युलर आइडियल्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैव बीन क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन मैनी स्टेट्स. ये बात कर रहे हैं कि इवन दो हमने बात की कि हमारा जो देश होगा वो सेक्युलर होगा, मतलब यहाँ पर सारे धर्म को समान माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कई जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके आपस में क्लैशेस होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, कई बार वो काफ़ी वायलेंट भी हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो persistent. Above all, as many observers have noted, the gulf between the rich and the poor has grown over the years. गल्फ का मतलब जो उनके बीच का जो गैप है उसकी बात है कि अमीर और गरीबी के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है. Some parts of India and some group of Indians have benefited a great deal from economic development. तो इंडिया के कुछ पार्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. दे लिव इन लार्ज हाउसेस, बड़े लोगों की बात करेगी, बड़े घर उन्होंने बना लिए. दे डाइन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, सेंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स एंड टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज. तो एक ऐसा वर्ग है जो बहुत अमीर हो चुका है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, महंगे होटलों में, रेस्तरां में खाना खाता है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वो खुद वो प्राइवेट जेट्स पर घूमते हैं, एक्सपेंसिव हॉलीडेज पर जाते हैं, फॉरेन घूमने जाते हैं. एंड एट द सेम टाइम मेनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. और अभी भी एक ऐसी भी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी में एक ऐसा बहुत बड़ा परसेंटेज है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जी रहे हैं. दे आर हाउस्ड इन अर्बन स्लम्स और लिविंग इन रिमोट विलेजेस ऑन लैंड्स दैट यील्ड लिटिल. They cannot afford to send their children to school. अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं. सिचुएशन इतनी खराब है कि पूरे एक दिन काम करते हैं तो 100 रुपए भी नहीं कमा पाते. छोटे छोटे गांव में रहते हैं, ना उनके पास अपनी जमीन है, ना सर छुपाने को घर है. The Constitution recognizes equality before the law, but in real life, some Indians are more equal than others. Judged by the standards it sets itself at independence, the Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either. So they are saying that we are stranded in between. ना तो हम सक्सेसफुली हो पाए, ना हम फेलियर ही हो पाए. इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, पर आज हम ये देख रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं पाई जा रही है. This is the slum area where the urban people, the urban poor people are living in slum areas. ये urban slums हैं. ये एक तरफ आप देख सकते हैं ये tall buildings हैं, दूसरी तरफ ये slum areas. This is the धारावी slum of India. इंडिया में मुंबई के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, धारावी. एक तरफ तो आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और दूसरी तरफ ये गरीब लोग. Talking about a similar thing in Sri Lanka. Now what happened in Sri Lanka? In 1956, the year the states of India were reorganized on the basis of language. The Parliament of Sri Lanka, उस समय Ceylon बोलते थे, then Ceylon introduced an act recognizing Sinhala as the sole official language of the country. तो जब हम सारे के सारे देश को हम यूनाइट करने का काम कर रहे थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को हम अपने देश में मिलाने का काम कर रहे थे, वन नेशन फॉर्मेशन कर रहे थे, उस समय श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. This made Sinhala the medium of instruction in all state schools and colleges, in public examinations and in the court. तो सब पूरे देश में सिन्हाला लैंग्वेज चलने लगी. The new act was opposed by the Tamil speaking minority who lived in the north of the island. और इस एक्ट को कि भाई सिन्हाला लैंग्वेज ही चलेगी, इसको अपोज किया तमिल स्पीकिंग जो लोग थे, तमिल वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, जो आइलैंड के नॉर्थ में जो जाफना वगैरह एरिया जो है वहाँ पर रहते थे. इनफैक्ट कई समय तक उन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाई, एलटीटी बोलकर एक ग्रुप चलता था, उनकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी जाफना में. बाद में उनके जो लीडर थे वेणुगोपाल, उनकी डेथ हो गई, बाद में वो बंद हो गया. तो उन लोगों ने इस चीज़ को अपोज किया. व्हेन यू डिनाई मी माई लैंग्वेज, सेड वन तमिल एमपी, यू डिनाई मी एवरीथिंग. कह रहे हैं अगर आप हमें भाषा नहीं देंगे तो आप हमें कुछ भी नहीं देंगे. यू आर होपिंग फॉर अ डिवाइडेड सिलोन, वांट अनदर एडिंग.
डू नॉट फियर, आई अश्योर यू दैट यू विल हैव अ डिवाइडेड सीलोन, कि हमें श्रीलंका का डिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से एक सिन्हाला लैंग्वेज हम सबके ऊपर लगा देंगे जो कि हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हमें डिवाइड होना पड़ेगा। एन ऑपोजिशन मेंबर हिमसेल्फ, सिन्हाला स्पीकिंग, प्रेडिक्टेड दैट इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट चेंज इट्स माइंड एंड इंसिस्टेड ऑन द एक्ट बीइंग पास्ड, टू टॉर्न लिटिल ब्लीडिंग स्टेट्स माइट येट अराइज आउट ऑफ वन लिटिल स्टेट। कह रहे कि अगर आपने सिन्हाला लैंग्वेज को जो आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है, नेशनल लैंग्वेज बना दिया, अगर आपने इस एक्ट को खत्म नहीं किया तो श्रीलंका के 2 टुकड़े हो जाएंगे, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। और इस वजह से कई सालों तक, for several decades now, a civil war has raged in Sri Lanka, whose roots lie in the imposition of Sinhala language on the Tamil-speaking minority. And another South Asian country, Pakistan, it was also divided into 2 when the Bengali speakers of the East felt that their language was being suppressed. अब जब आज़ाद हुए तो पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के जो लोग थे वो उर्दू ना बोलकर, फारसी ना बोलकर, अरबिक ना बोलकर वो बंगाली बोलते थे, और उनको ऐसा लगता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान जो है वो उनको लोअर समझता है, उनको छोटा समझता है, उनको नीचा दिखाता है। और इसी बेसिस पर इसको भी, ये दोनों कंट्रीज भी अपने आपस में अलग हुए, लैंग्वेज के बेसिस पर अलग कंट्री बन गई। बाय कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज मैनेज्ड टू सर्वाइव एज अ सिंगल नेशन, in part because the many regional languages were given freedom to flourish. पर भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई लैंग्वेज की वजह से, सिर्फ 2 लैंग्वेज की वजह से। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बंगाली लैंग्वेज, वो भी बंगाल लैंग्वेज की वजह से डिवाइड हो गया। लेकिन इंडिया में इतने सारे लैंग्वेज होने के बावजूद भी आज तक हमारा देश एक है, यूनाइटेड है और ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलपमेंट यहाँ हो रही है। अगर हमने भी यही किया होता, हैड हिंदी बीन इम्पोज्ड ऑन साउथ इंडिया इन द वे दैट उर्दू वाज इम्पोज्ड ऑन ईस्ट पाकिस्तान, तो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, जो आज का पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश को कहते थे कि तुम उर्दू बोलोगे, वो कहते थे हम उर्दू नहीं, हम बंगाली बोलेंगे। तो अगर हमने भी यही किया होता, जो कि वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ कहा कि नहीं तुम्हें उर्दू बोलनी पड़ेगी या सिन्हाला बोलनी पड़ेगी, जो नॉर्दर्न श्रीलंका के लोगों के साथ किया गया, जो तमिल स्पीकर्स के साथ श्रीलंका में हुआ कि तुम्हें सिन्हाला बोलना पड़ेगा, या जो कि बांग्लादेशी लोगों के साथ हुआ जो कि ईस्ट पाकिस्तान था कि तुम्हें उर्दू कहनी पड़ेगी। अगर हमने ऐसा किया होता कि नॉर्थ इंडिया की हिंदी लैंग्वेज को अगर हमने साउथ इंडिया पे इम्पोज किया होता कि हम भी अगर तेलुगु, तमिलनाडु और केरल जाकर कहते कि आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, इंडिया टू माइट हैव सीन सिविल वॉर एंड फ्रैगमेंटेशन कॉन्ट्ररी टू द फियर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। तो हमने किसी को कोई इम्पोज नहीं किया कि आपको ये जबरदस्ती ये लैंग्वेज करनी पड़ेगी। हम उस समय घबरा भी रहे थे कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया तो और ज़्यादा इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने एक्सपेक्ट भी किया था। इसीलिए इन्होंने अपने प्रॉमिस से ये पीछे हट गए थे। पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो आपको स्टेट के बेसिस पर आपका प्रोविंस बना कर देंगे, फिर बाद में ये लोग उस चीज़ से पीछे हट गए। बाद में इट वॉज द पॉटी श्रीरामुलु जिनके स्ट्राइक की वजह से पहले आंध्र प्रदेश और बाकी के अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोविंसेस जो अलग अलग स्टेट्स बन गए। पर हमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए हमारे देश का फर्दर और फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव नॉट थ्रेटन्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। अलग अलग भाषा बोलने वाले जो स्टेट्स थे उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, हमारी यूनिटी को कभी खतरा नहीं रहा। रादर दे हैव डीपन्ड दिस यूनिटी। वंस द फियर ऑफ वंस लैंग्वेज बीइंग सप्रेस्ड हैज गॉन, the different linguistic groups have been content to live as a part of the larger nation called India। और जब इनफैक्ट ये अलग अलग भाषा बोलने वाले जो प्रांतीय क्षेत्र थे, अलग अलग प्रांत थे, जब इन्हें ये भरोसा हो गया कि हमें अपने भाषा को बोलने वाली एक राज्य दी जाएगी, तब इनके मन से सारा डर चला गया और ये सब एक बड़े देश, एक नेशन, एक भारत के साथ जुड़कर एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा? चैप्टर काफ़ी बड़ा है, वीडियो को एटलीस्ट 10-12 टाइम्स आप देखिए। दैट्स ऑल।